I would like to turn Matthew chapter 18, मत्ती चैप्टर 18 में जाएंगे, verse 21 onwards. वाक्य 21 से पढ़ेंगे। Peter asked Jesus, Lord, how often shall I forgive my brother who sinned against me? Is it up to 7 times? पढ़ेंगे हिंदी में। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करो तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? Jesus said to him, see Peter, this is not a mathematics, it's a matter of spirit. तो यहाँ पे प्रभु यीशु ने इसको कहा कि ये कोई गिनती वाली बात नहीं है, लेकिन एक आत्मे की बात है। But I want to just show you why Peter asked 7 times. Specifically he said 7. लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि क्यों पतरस ने वो 7 नंबर चुना? Because you read in Mark chapter 11, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 11 में, verse 24, Jesus said, therefore I say to you all things for which you pray, that if you have anything against your brother, you forgive him 7 times. मार्क चैप्टर 11 वाक्य 24, Sorry, Luke chapter. सॉरी Luke chapter 16. लूका चैप्टर 16 वाक्य 24, 17:3. लूका चैप्टर 17, Be लूका God. चैप्टर 17 उसमें वाक्य 3। Be on your guard. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times a day, returns to you on 7 times, saying, I repent, forgive him. पढ़े। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करो तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार या 7 बार तेरा अपराध कर तो 7 बार तेरे आकर के पछताता तो उसे क्षमा कर। See, this is a perfect example to show you if you go by one verse, you will be entirely wrong. तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि अगर हम लोग एक वाक्य को पकड़ के बैठेंगे तो हम loग गलत हो सकते हैं हमारे मसीह जीवन Because में। Peter heard one of Jesus' message, this 7 times, so he asked Jesus, Lord, is it 7 times? And Jesus said, you completely misunderstood what my spirit. तो the क्योंकि words. पतरस ने एक प्रचार सुना था प्रभु यीशु का, इसलिए वो समझ बैठा बस 7 ही बार उसे माफ करना है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, तू पूरी तरह से चूक चुका है कि मैं क्या कहना चाहता था। So it's good to learn from Peter to go by balanced verse. इसलिए बहुत ही अच्छा, इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये उदाहरण से सीखें कि हम लोग हर एक वाक्य को सही तुलना में लें। So we all know this parable. So let me tell you in nutshell. तो हम लोग सब लोग ये कहानी के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में ऊपर से बताऊंगा थोड़ा बहुत। See, a man borrowed 10,000 talents of rupees, means which is equivalent to crores of rupees today, from the moneylender. तो एक व्यक्ति था जिसने एक दूसरे व्यक्ति से तकरीबन कई लाखों रुपए उधार लिए। So he couldn't afford to pay. So the moneylender asked him to sell all the household, everything. But he said, "Please have mercy on me." And the moneylender has forgiven everything. तो क्योंकि वो वापस दे नहीं पाया सारे पैसा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अपना घर बार सब बेच के वो पैसे मुझे वापस दे दो, लेकिन उसने उससे बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कर सकता, तो उसने उसे माफ कर दिया। So after he walks on the street and he find a fellow slave man who borrowed 100 denarii, like 100 rupees, and he asked to repay, but he said the same word. He said, "Have mercy on me, please." But he is not ready to forgive, and he put him the hands on the throat and he crushed him. Then somebody else heard that, and he went and reported to the moneylender. तो ये व्यक्ति जिसने माफी पाया था, वो रास्ते पे चल रहा था, तो उसने दूसरे व्यक्ति को देखा जिसने उससे पैसे लिए थे, तो उसने जाके उसको बोला कि तुम मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे माफ करो, मैं नहीं वापस कर सकता। लेकिन इसके बजाय कि वो रहम खाए, उसने उसके ऊपर बुरा सलूक किया, और ये बात किसी और व्यक्ति ने देखा जिसने पहले व्यक्ति को जाके कहा कि ऐसा हुआ है। Now I want to show you 2 important verses on this chapter. तो मैं 2 एकदम महत्वपूर्ण वचन दिखाना चाहता हूँ ये चैप्टर में से। And he says, the moneylender, verse 33, should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you? And he said, Lord, the moneylender moved with anger, and he handed over him the torturer until he should repay. And verse 35 is one of the strongest verse, I would say. My heavenly Father, he is saying, my heavenly Father will also do the same to you. To you means believers. If each of you does not forgive brother from your heart. वाक्य 33 से 35 पढ़ी। इसलिए मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने किसी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले का हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब खर्चा भरना दे तब तक उसके हाथ में रहे। So what it means? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को
मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में उससे वैसे ही करेगा। So what it means this is, see, we all ask for forgiveness from the Lord, so many sins, innumerable sins. तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कह रहे थे? हम लोग हर एक व्यक्ति प्रभु के पास जाता है उसके अनेक पापों के लिए माफी पाने के लिए। So that's like a money lender who forgiven for crores of money. तो वो एक ऐसा उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो बहुत उधार में था, कई करोड़ों रुपए के उधार में था, लेकिन उसे माफ किया जाता है। So another fellow comes in our church or some brother put it like 100 rupees, like a small sin against us. तो हमारे कलेशिया में उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति आता है जो हमारे खिलाफ बहुत ही छोटा पाप करता है, जैसे कोई 100 या 200 रुपए का उधार हो। And we could not forgive you. लेकिन अगर हम लोग उसको माफ नहीं करेंगे, And God says, my heavenly Father, when you stand the judgment seat, will recollect all the sins which you forgiven, the crores of sin, innumerable sins. He said, now I'm going to judge all the sins. तो यहाँ पे पिता परमेश्वर कहते हैं कि न्याय के दिन में अगर तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे, जिस दिन तुम मेरे सामने खड़े रहोगे, मैं हर एक पाप का हिसाब लूंगा जो तुम समझते हो मैंने तुम्हें माफ किया है। Now tell you something. Suppose, in practical terms, suppose you said a lie, but you didn't clean by the blood of Jesus, you didn't confess your sin, and you died, and you go to you stand the judgment seat, and Jesus will judge you for that one lie. तो एक उदाहरण के तौर पे सोचो तुमने एक झूठ बोला और उसको बोलने के पहले ही तुम मर गए और तुम प्रभु यीशु के जाके सामने खड़े हो गए और प्रभु यीशु ने तुम्हें बस वो एक झूठ के ऊपर तुम्हारे ऊपर न्याय किया, तो क्या होगा? But if you didn't forgive one brother, what he done something wrong against you, you have to stand in, you have to face all the judgment for all the sins, whichever you thought, it's all forgiven by the blood of Jesus. तो इसलिए अगर हम लोग कोई भाई या बहन के खिलाफ कुछ मन में कठोरता रखेंगे और उनको माफ नहीं करेंगे, तो जब हम लोग प्रभु के सामने जाएंगे तो वो भी हमारे हर एक पाप को माफ नहीं करेगा। But I tell you, if you really understood, you dare not to have something against brother. तो अगर हम लोग ये बात को सच में समझेंगे तो कभी भी हम लोग दूसरों को माफ करने से नहीं रुकेंगे। And see, I want to show you two people from the Bible. तो मैं दो लोगों को दिखाना चाहता हूँ। Example, how we supposed to die, how we not supposed to die. दो लोगों को उदाहरण में देना चाहता हूँ बाइबल में से, कैसे हमें मरना चाहिए और कैसे हमें नहीं मरना चाहिए। So one is, we all know, it's read in, we can read in 2 Samuel chapter 16. It says something about Shimei. When Shimei, when the David is coming from the gates to the city, the Shimei has really cursed him. In the sense, he spoke bad against David, and he really throw some stones against David. तो एक उदाहरण दाऊद का, जो एक बार जब दाऊद एक शहर से बाहर निकल रहा था, उस समय शिमै करके एक व्यक्ति था, तो जैसे दाऊद चल के जा रहा था उस शहर के बारे में, उसने काफी उसको गालियां दी और कई सारी बुरी बात बोली। And you read in 2 Samuel chapter 19, what I said as 16, now it's 19. He again went, and the Shimei went and asked forgiveness to David. और फिर हम लोग पढ़ते हैं दूसरे सैमुएल में कि कैसे वो व्यक्ति ने बाद में जाके दाऊद से माफी मांगी। David said, I have forgiven everything. और दाऊद ने उस समय कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। But we read in 1 King chapter 2. लेकिन पहले राजा चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं, Now David about to die, और यहाँ पे दाऊद बस मरने वाला होता है, and he suggests to, he says many things to his son Solomon. और उस समय अपने बेटे सोलोमन को काफी कुछ चीजें बोलता है। And he says, see, when I came from the place called Bahurim, there was a man called Shimei who cursed me. तो वो बोलता है कि उस एक समय था जब मैं एक शहर से बाहर आ रहा था, उस समय शिमै करके एक व्यक्ति था जिसने मुझे बहुत सारी गालियां दी थी, But I have forgiven him. मैंने उसे माफ किया है। But you know what to do. लेकिन वो बोलता है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या करना And है। he said, do not allow him to go in the grey hair. उसका मतलब ये है कि उसको शांति से मरने मत देना। See, what he said, we read in Matthew 18, from means you didn't forgive from your heart. You have to forgive from your heart. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दाऊद ने अपने मन से माफ नहीं किया था जैसे प्रभु यीशु ने कहा था। See, in David would have forgiven him in 2 Samuel chapter 19. तो ऐसा हो सकता है कि दाऊद ने दूसरे सामुएल चैप्टर 19 के समय पे उस समय उसने अपने मन से माफ किया रहेगा। He would never remember that. तो अगर उसने उस समय वैसा किया रहता तो कभी भी वो आगे जाके याद नहीं रखता कि इसने मेरे खिलाफ ये सब किया And the था। next verse says, David slept. In the sense, he died. और उसके अगले वचन में लिखा है कि वो सो गया, इसका मतलब कि उसकी मौत हो गई। Perfect example how believers should not die like this. तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे विश्वासियों को नहीं मरना है। Let me show you another godly man how we supposed to die from Genesis chapter 50. और एक धार्मिक व्यक्ति का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि कैसे हमें मरना है, और वो है उत्पत्ति चैप्टर 15। Genesis chapter 50. उत्पत्ति चैप्टर 15। It speaks about Joseph. यहाँ पे यूसुफ के बारे में लिखा है। And the interesting things, you know, this is Joseph was a really very old man, maybe
the age of 70, 80, I don't know that age. और यूसुफ यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, तकरीबन 70 या 80 साल का। Now Jacob died, अभी verse 70. जेकब मर चुका था। Now his all brothers comes to Joseph. He says, please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin. They did you wrong. Now please forgive the transgression of the servants of the God of your father. And Joseph wept and they spoke to him. When they spoke to him. Verse 17 onwards. उत्पत्ति चैप्टर 50 उसमें वाक्य 17। If you want to know clear pictures, read it from verse 15. Verse 15. उत्पत्ति चैप्टर 50 वाक्य 15 से 17। Joseph's brothers saw that their 15 से 17। उत्पत्ति चैप्टर 50 15 से 17। जब यूसुफ के भाई ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगा, कदाचित यूसुफ भी हमारे पीछे पड़े। जितना बुराई हमने उसकी की थी, सबका पूरा परिणाम से ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास या ठहर बजाते हुए पिता ने मरने से पहले हमें आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते कि तुम अपने भाई के अपराध को क्षमा कर। हमने तुझे बुराई की थी, अब अपने पिता के परमेश्वर के दास का अपराध क्षमा कर। See, we all know what Joseph's brothers did to Joseph. हम लोग सब लोग जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या सुलूक किया था। After many years, they thought, okay, as long as the father is there, he will not do any wrong to us. तो लोग सोचते थे कि जब तक हमारे पिता जिंदा है तब तक ये हमारे खिलाफ कुछ बुरा नहीं करेगा। Jacob died, they really, their conscience bothered. लेकिन जैसे उनके पिता की मौत हो गई, ये लोग सब लोग टेंशन में आ गए। They are not sure, even they themselves feel we did such a wrong thing. Even after 50, 60, 70 years also, Joseph couldn't forgive. क्योंकि वो लोग खुद जानते थे उन्होंने कितना बुरा सलूक किया था यूसुफ के साथ, और उनको डर था कि इतने सालों के बाद भी शायद से भूलेगा नहीं ये सब। But you know what Joseph did? लेकिन तुम्हें पता है क्या यूसुफ ने किया? But Joseph said, do not be afraid. I will do nothing wrong to you. यूसुफ ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम लोग के साथ कोई भी गलत चीज नहीं करूंगा। And verse 23 says, Joseph saw the third generation of Abraham's sons, and the last verse 25 says, Joseph made the sons of Israel swear, saying God will. And 26, Joseph died at the age of 110 years. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ ने अपनी तीसरी पीढ़ी तक देखी और उनको सबको आशीष दिया। See, we saw the two examples of how David died, how Joseph died. तब हम लोग दो उदाहरण देखते हैं, एक कैसे दाऊद मरा और दूसरा कैसे यूसुफ मरा था। But when Joseph died, he forgave everything what his brothers did. तो जब यूसुफ मरा था उस समय उसने सारे लोग व्यक्ति को माफ करके फिर वो मरा था। That is the way we supposed to die. उसी तरीके से हमें भी मरना है। But what about David? लेकिन दाऊद के बारे में क्या? God will recollect all his sins, whichever is forgiven, and will judge on the day of judgment. तो क्या पिता परमेश्वर दाऊद के हर एक पाप को याद रखेगा न्याय के दिन में? No, because Matthew 18 is not written in this David's days. नहीं. There is no commandment you have to forgive somebody from the heart in Old Testament. नहीं, क्योंकि दाऊद पुराने करार में जीता था और उस समय प्रभु यीशु के ये शब्द कि हर एक व्यक्ति को माफ करना है नहीं लिखे गए थे। Now I want to show you something. See, two verses. Number 1, Jesus said, whenever you have something against your brother, leave the means you are going to do some offering, leave that offering and go and settle your brother. और दो चीजें बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम कोई बलिदान चढ़ाने आते हो प्रभु की ओर, अगर तुम्हारे मन में या किसी और के मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ है तो सबसे पहले जाके उसे ठीक करो। I mean, Jesus said the offering, whatever you put offering is good for nothing, and you are not settled with your brother. जो कोई भी तुम्हारी सेवा है, जो कोई भी तुम्हारा बलिदान है, वो कोई भी काम का नहीं है जब तक तुम्हारा भाई के साथ तुम्हारा तालमेल नहीं Now, बैठता। I will show you another verse in Mark chapter 11. तो मार्कस चैप्टर 11 में और एक वचन दिखाऊंगा। Many people quote this verse. काफी लोग ये वचन बोलते हैं। They say, therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you will receive them. इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हर एक चीज के लिए जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो विश्वास रखो कि तुम्हें वो मिलेगा। But they stop within that's all. They stop. और वहीं पे वो रुक जाते हैं। But read the next verse. What Jesus said. लेकिन इसके अगला वचन भी पढ़ो। But Jesus said, whenever you stand for praying, whenever you are going to pray. और यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि जहाँ कहीं भी तुम खड़े होते हो प्रार्थना करने के लिए, Forgive if you have anything against anyone. अगर किसी के खिलाफ तुम्हारे मन में कुछ है तो उसी समय माफ करो। And do you know there are many prayers which is not answered for us. और क्या तुम जानते हो कितने सारे हमारे प्रार्थनाएं होते हैं जिसका उत्तर नहीं आता? It's good to check. Is it ready to forgive somebody? तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग जांचें कि क्या किसी को मैंने माफ नहीं किया है। And I tell you something. This is the normal level of a believer. Means somebody comes to ask us and we should
forgive from our heart. और मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही साधारण सा स्तर है एक विश्वासी के लिए कि कोई हमारे पास आता है माफी मांग के और हमें उसे माफ करना है। That is not Jesus level. वो एकदम बहुत ही ऊपर वाला स्तर नहीं है। You know what is the Jesus level? प्रभु यीशु का स्तर क्या है पता है? When he was hanging on the cross कि जब वो क्रूस पे लटक रहा था with all accusation, और सब लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे। there was nobody in the world who ever faced such a accusation as Jesus faced. दुनिया में से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभु यीशु के जैसे दोषी ठहरा गया। All accusations, हर एक तरीके का दोष उस पे डाला all the था, physical pain, हर एक तरीके का दर्द उसके ऊपर था, all spiritual pain. हर एक तरीके का आत्मिक दर्द भी था उसके ऊपर। But he said, लेकिन उसने बोला, Father, forgive them. उसने बोला They don't know what they are doing. परमेश्वर ने माफ करी, जानते नहीं लोग क्या कर रहे हैं। None of the Roman soldiers asked forgiveness. None of the Pharisees asked forgiveness. कोई भी वहाँ पे जो सैनिक थे या जो फरीसिया थे, किन्होंने भी उनसे माफी नहीं मांगी, But he forgave them from his heart. लेकिन इसके बावजूद उसने अपने मन से उनको माफ कर दिया। That is the level of Jesus. ये प्रभु यीशु का स्तर है। See, at least we should maintain this level, but it's the second best. तो कम से कम हमें जो नीचे वाला स्तर है वो तो हमें बनाए रखना ही है But somebody comes to ask, we forgive them. कि कोई अगर हमारे पास आके माफी मांगता है, हमें उन्हें माफ करना We है। really want to be Jesus. लेकिन अगर तुम्हें सच में प्रभु यीशु के जैसे बनना We है, don't want anybody to say, come and ask forgiveness. They तो will तुम्हें forgive with heart. तो तुम्हें कभी रुकना नहीं है कि कोई आके तुमसे माफी मांगे, तुम्हें उसके पहले उन्हें माफ करना है। What is the mark that you really forgive somebody? तो इसका निशानी क्या है कि तुमने सच में किसी को माफ I किया है? finish with this. I'll tell you few marks. The number one mark is when something happened bad against them, we feel sorry. In the sense, it's a good mark. एक निशानी ये है कि हमने एक व्यक्ति को माफ किया है कि जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, हमें खुशी नहीं लेकिन दुख होता है। And second thing, I'll tell you something. और दूसरी चीज ये है, When Jesus, he has always had a biggest conflict with the Pharisees. तो प्रभु यीशु हमेशा उनका झगड़ा फरीसियों के साथ बहुत होता था। But when they called for dinner, लेकिन जब उन्होंने एक दिन प्रभु यीशु को खाने पे बुलाया, I don't think he never refused. मैं नहीं सोचता कि कभी भी उन्होंने मना किया होगा। Jesus, I don't want to see your face. I hate you so much. No. प्रभु यीशु कभी ऐसे नहीं बोलेंगे मैं तुमसे इतना नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना He's चाहता। always ready to face them. हमेशा वो तैयार रहता था उनका सामना करने के लिए, Dine with them. उनके साथ खाना खाने के लिए। And third thing, I'll show you something. और तीसरी चीज मैं बोलना I've चाहता हूँ, seen some two small children, 5 years old, when they fight each other. क्या कभी देखे कि छोटे बच्चे 2 या 5 साल के जब लोग आपस में झगड़ते हैं And after some time, when they forgive, means they come together. और कुछ समय बाद वो लोग एक दूसरे के साथ वापस If you दोस्ती go बना and लेते see in हैं, their heart, you will not find even a sign of that fight. तो उस समय अगर तुम उनके मन को जांचोगे, उनके अंदर थोड़ा भी ऐसा निशानी नहीं रहेगा कि उन्होंने झगड़ा किया है। Sometimes we can't forgive people within a day. कई बार हम लोग तुरंत या एक दिन में एक व्यक्ति को माफ नहीं कर पाते। But I'll tell you something. It's like when you write something in the seashore. लेकिन मैं बोलता हूँ वो एक इसकी तुलना में है कि कैसे हम लोग सीशोर रेत पे हम लोग लिखते हैं हाथ से कुछ। When the first waves comes, the letter will not disappear fully. जब पहला लहर आता है उस समय वो रेती पूरी तरीके से नहीं मिट जाता है। Second wave comes, it disappears a little bit. दूसरा लहर आता है फिर थोड़ा और मिट जाता है। Third wave, fourth wave. फिर 3-4 लहरों के बाद And after some time you come and see, nothing is there. और ऐसे कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे तो जो लिखा था वो पूरी तरीके से मिट जाता है। After 6 months or 1 year, we should not even if you want to try to remember, it not comes in our mind. उसी तरीके से हमारे जीवन में भी 6 महीने 1 साल के बाद जब हम लोग याद करेंगे तो याद भी नहीं आना चाहिए कि वो व्यक्ति ने हमारे खिलाफ क्या किया था। And that is the way Jesus said we want to forgive others. और उसी तरीके से प्रभु यीशु ने कहा है हमें दूसरों को माफ करना है। And I tell you, this is a serious thing when you really understood in Matthew chapter 18 verse 35. और ये बहुत ही गंभीर की बात है जो हमें समझना है, जो इसमें लिखी है। And let us really understood that and follow in our life. और सिर्फ समझना ही नहीं लेकिन हमारे जीवन में लागू भी करना है।